નમસ્કાર, લોકમૈત્રી ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જોઈએ આજના સમાચાર. આગામી 24 એપ્રિલે ઝીરો અવર ફાઉન્ડેશનની પહેલ છાત્ર સંસદ પારુલ યુનિવર્સિટી વડોદરા ગુજરાત દ્વારા પ્રસ્તુત 5મી ગુજરાત છાત્ર સંસદ કોન્ક્લેવનું આયોજન કરશે. આગામી 24 એપ્રિલ છાત્ર સંસદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે આ ઇવેન્ટ સમગ્ર દેશમાંથી 15,000થી પણ વધુ વિચારશીલ અને ઇનોવેટિવ વિદ્યાર્થીઓમાં 5મા છાત્ર સંસદમાં એકઠા કરવા માંગે છે. ગુજરાત છાત્ર સંસદની 5મી આવૃત્તિ માટે લોકશાહીના 75 વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. 75માં ભારતની સામાન્ય થીમ પર ચર્ચા કરવા અને વિચારોને આગળ ધપાવવા માટે સમગ્ર દેશમાંથી યુવાનોએ એક જગ્યાએ એકત્ર કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે. ત્યારે માઇલસ્ટોન, ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓ અને ભારતે અનુભવેલી સફળતાઓ તેમજ પડકારોની ચર્ચા કરવી, હાલમાં જે અવરોધોનો સામનો કરી રહ્યા છે અને પછી ભારતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ ચર્ચા કરવામાં આવશે. કોવિડ-19 રોગચાળા પછીના પ્રથમ પ્રકારના આ ભવ્ય કાર્યક્રમ માટે દેશના નામાંકિત અને લોકપ્રિય વક્તાઓને વડોદરા શહેરમાં હોસ્ટ કરી રહ્યા છે. શ્રી કૈલાશ વિજયવર્ગીય, શ્રી રંજન ગોગોઈ, મુખ્ય ન્યાયાધીરા શ્રીમતી કિરણ બેદી તથા શ્રીમતી મા આનંદ શીલા, શ્રી શકુન બત્રા, શ્રી આનંદ નરસિમ્હન તથા CNN નેટવર્ક 18 શ્રી પ્રકાશ બેલવાડી અને ભારતીય મીડિયા વ્યક્તિત્વ શ્રી ઉદય માહુરકર, મૌલાના કલ્લેરુ દ્રિઝવી, અનિલ શેટ્ટી, શ્રીમતી ચારુ પ્રજ્ઞા તમામ વક્તાઓ વિવિધ 3 સત્રમાં પેનલ ડિસ્કશન સાથે પોતાના વિચારો રજૂ કરશે. કાર્યક્રમના સમાપન પર વક્તાઓની ચર્ચાઓના આધારે 5 ઠરાવો પસાર કરવામાં આવશે, જે છાત્ર સંસદની ઘોષણાઓ તરીકે સંકલિત કરવામાં આવશે અને કેન્દ્ર, રાજ્ય સરકારો અને નીતિ આયોગની સંબંધિત નીતિ નિર્માણ સંસ્થાઓને મોકલવામાં આવશે. તદુપરાંત ગુજરાત અને વડોદરાના 15,000 સહભાગીઓ વિવિધ શહેરોમાં આ ઘોષણાના અમલમાં ભાગ લેશે. છાત્ર સંસદની રચના કરતી ટીમો સાથે સંકલન કરો અને તેમની સાથે કામ કરશે. રાજકારણીઓ નથી, પરંતુ સરકારી અધિકારીઓ પણ નથી, એવા યુવાનો છીએ કે જેઓ આવતીકાલની રાજકીય ઇકોસિસ્ટમને બદલવા અને પરિવર્તિત કરવાનો સંકલ્પ કરે છે. જેવું સંસદના છાત્ર કૃણાલ શર્મા જેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. હું હંમેશા યુવાનોની સામૂહિક ઉર્જામાં વિશ્વાસ રાખું છું અને હું માનું છું કે આ પ્લેટફોર્મ રાજ્યભરના યુવાનોને તેમના વિચારો અને તેમના જ્ઞાનને શોધવા માટે એક સામાન્ય મંચ પર એક સાથે લાવવામાં ઘણો આગળ વધશે. તેઓ કહે છે કે યુવાનો એ ભવિષ્ય છે. સારું છે, હું કહું છું કે યુવાનો એ આપણું વર્તમાન છે. આવતીકાલે જે પરિવર્તનની જરૂર છે તે આજથી જ શરૂ થાય છે, જેમ પારુલ યુનિવર્સિટીના ડૉક્ટર દેવાંશુ પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. और गेस्ट के रूप में कौन कौन आ रहा है? इस बार ज़ीरो आवर फाउंडेशन अपने 7वें साल में है. कोविड के दौरान हम लोग छात्र संसद का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही हम लोग आए 5th गुजरात छात्र संसद के साथ, ये पूरे गुजरात की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा युवा जुड़ने वाले गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से. एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट लिस्ट हम लोग लेके आने का प्रयास किया है, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड से हमारे पास गेस्ट्स हैं. संसद और छात्र बनाएंगे सुरक्षित राष्ट्र, इसी नारे को आगे ले जाते हुए छात्र संसद कई सालों से प्रयास कर रहा है कि युवाओं को कहीं ना कहीं डेवलप किया जाए और उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ना कि कोई एजेंडा के लिए. और इस छात्र संसद में 15,000 युवा मिलके 3 रेजोल्यूशंस पास करेंगे, जो रेजोल्यूशंस स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और अन्य कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया जाएगा. हमारे साथ मौजूद रहने वाली लिस्ट में 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी है, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी किरण बेदी मैम है, रजनीश मूवमेंट के स्पोक पर्सन मां आनंद शीला है, शकुन बत्रा, प्रकाश बेलवाड़ी और ऐसे अन्य कई स्पीकर्स आके युवाओं के साथ इंटरैक्ट करेंगे. और हम एक ही बात जानते हैं और एक ही बात मानते हैं, अगर युवाओं के लिए कुछ करना है तो कुछ क्रिएटिव वे में करना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जब वो घर जाए तो कुछ वापस लेके जाए. और यही करने का प्रयास छात्र संसद की टीम ने ये किया है और हमेशा करते आएगी. धन्यवाद. 3 रेजोल्यूशंस के बारे में बात की जाएगी और उस पर वोट किया जाएगा, जिसमें एवरेज एज ऑफ अ पॉलिटिकल कैंडिडेट सबसे पहला हमारा रेजोल्यूशन है. दूसरा रेजोल्यूशन, जब हम फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे देश में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे डेवलपिंग कंट्री से ये देश डेवलप्ड कंट्री बने. और तीसरा रेजोल्यूशन ये होगा
कि किस तरीके से युवा अपनी सोच रखते हैं हिस्ट्री को लेके और ऐसी क्या क्या समस्याएं उन्हें लगती है पास्ट की जिससे ये देश अभी तक डेवलप नहीं बना। छात्र आने वाले हो, उन लोगों की भूमिकाएं क्या रही? हमें बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन मिला है सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, डांग डिस्ट्रिक्ट से। हर एक समाज के युवा हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं और जिस तरीके की पार्टिसिपेशन की बात हुई, छात्र संसद हमेशा से समझता है कि युवाओं के पार्टिसिपेशन के बिना इस देश का कुछ नहीं हो सकता और वही हमारे कॉन्क्लेव की रूपरेखा है जिसमें 15,000 युवा मिलके वोट करेंगे रेजोल्यूशंस पे, रेजोल्यूशन के बारे में लिखेंगे जिस पे एक प्रॉपर रेजोल्यूशन लीगल वे में ड्राफ्ट किया जाएगा जो कि अलग सरकार को दिया जाएगा। और छात्र संसद हमेशा से मानता है कि सरकार के साथ मिलके कंस्ट्रक्टिव काम करके जो युवा और सरकार के बीच की गैप है उसे ब्रिज करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम पिछले कुछ सालों से जो हम निरंतर काम करते आ रहे हैं वो आप सभी मीडिया कर्मियों की वजह से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें लोगों तक पहुंचाया और अब हम लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। संसद और छात्र बनाएंगे सुरक्षित राष्ट्र, इसी नारे को छात्र संसद पिछले 7 साल से काम में लेके आ रहा है और 24 अप्रैल को 15,000 युवाओं के साथ मिलके गुजरात छात्र संसद का आयोजन होने वाला है जिसमें 75 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे पूरा का पूरा कार्यक्रम बेस्ड है। हमारे बीच मौजूद रहने वाले 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी, किरण बेदी जी, प्रकाश बेलवाड़ी कश्मीर फाइल्स के एक्टर, मां आनंद शीला ओशो मूवमेंट के स्पोक पर्सन और ऐसे अन्य कई गेस्ट जो कि युवाओं के साथ इंटरैक्ट करेंगे। युवाओं को मौका मिलेगा उनसे प्रश्न पूछने का और वोट करने का 3 मेजर रेजोल्यूशंस पे जिन पे वो बताएंगे कि पॉलिटिकल कैंडिडेट की एवरेज एज क्या होनी चाहिए इलेक्शंस में। जैसे हम युवाओं की बात करते हैं, हमारा देश एक युवा देश है, तो उस युवा देश को रिप्रेजेंट कितने एज के लोग कर सके, कितने एज के पॉलिटिशियंस कर सके, ये प्रयास छात्र संसद का रहा है। और ये छात्र संसद के बाद ये जो 15,000 युवाओं ने रेजोल्यूशन पास किया है ये हम लोग हमारी सरकार को देंगे, सरकार को कहेंगे कि युवाओं की ये सोच है और युवा ये चाहता है देश के लिए और हम हमेशा से सरकार के साथ मिलके कंस्ट्रक्टिव वे में काम करने का प्रयास करते आए युवाओं के लिए। कुणाल शर्मा।